Hello viewers, welcome to Teachers Talk. Viewers, once Nelson Mandela has said that no country can really develop unless its citizens are educated. So viewers, अपने आप में एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जो किसी भी इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करके दिखाता है। तो इसी सब पे बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं सेंशिया इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल मैम। तो मैम, मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे रहेगा कि ये जो 2020 अभी जो चला गया, अपने आप में ये साल आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? अप टू हाउ मच एक्सटेंट दिस 2020 वाज वेरी चैलेंजिंग एंड एज ए प्रिंसिपल आपने इसको कैसे इस चैलेंज को आपने कैसे एक्सेप्ट किया और कैसे अपने आप को एज ए प्रिंसिपल आपने प्रूव किया? Responsibility of children are there, that we have to give them the proper education. So it's a big challenge for me also and for my staff also. But I think my staff team, otherwise we make a full strategy about the online classes, we make a full periods, and everyone support, even the parents also support us. They take a Wi-Fi system also, 2G is there, so it's a very difficult on the tool 2G that you have to conduct this online classes. Parents also give a support to us, and we conducted online classes in which even we are celebrating functions also, we are doing activities also, and I think parents are happy with us, and students are also engaged in this education. I mean to say, if I'll add much more in this, challenging with respect to online classes, because already you mentioned that we were having 2G. It's a big challenge for Jammu pupils, 2G. But I think we have to manage in any way. Parents also cooperate us, support us, and teachers also support us, and we do it. And even in WhatsApp also we give them. It's a big challenge for us. I think some negatives are positives. Other negative things are also there. Too much use of this mobiles are there. Sometime parents fed up, मैडम हम हरदम उनको मोबाइल्स हाथ में रखते हैं, कभी वो गेम खेलने लगते हैं. बट what can we do? We have only this type of system. हमारे पास सिर्फ इस टाइम एक मोबाइल है जिसके थ्रू हम बच्चों के पास. Other than that, we don't have any alternate. We have not any alternate. Okay, fine. It means in a very collective way, with the help of your staff members, with the help of parents, collectively you all managed. Conducted a very good online education properly. It's not a perfection should be there in online, everyone know, क्योंकि जो एक टीचर का और जो अध्यापक का होता है वो चीज़ नहीं हो सकती है, वो तो एक है. बट एक कोशिश थी, एक प्रयास था कि हम लोग इसको अच्छी तरीके से कर सके. अपनी जितनी कोशिश थी वो की, एंड समवेयर लिटिल बिट सेटिस्फाइड कि वी आर डूइंग आवर बेस्ट and children are also taking a good thing. So parents are also 90% satisfaction is there. 10% only due to this 2G कि मैडम कट जाता है. Then what can we do about this thing? Okay. Ma'am, let's move further. When somebody talks about quality education, like you have a big experience in this teaching field, quality education to some extent, few people think that it's all about technology, it's all about teaching aids. What according to you is quality education, and how so far your school is providing quality education, and how far you have achieved that successfully? I mean, if you will give us the proper exact definition and meaning of quality education with respect to your school, then what according to you is that, and how so far you have successfully achieved that? I think quality education means not only a technology. Quality education तो हम लोग 50 years पहले भी दे रहे थे, जब हमारे अध्यापक या हमारे जो आश्रम में बैठे हुए थे हमारे गुरु वगैरह, वो भी क्वालिटी एजुकेशन दे रहे थे. इसलिए that's why we don't connect the technology with the quality education. That's what in my question I've already mentioned कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जब क्वालिटी एजुकेशन की बात होती है तो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है और टीचिंग एड्स की बात हो रही है. नहीं,
I'm not agree with this with the technology. Quality education means we give the children all over education. All In- round development. All over development, in where we give them the education about the language also, about the moral value also, about the science also, about the history also, about the political also, even about the current affairs also. जब बच्चे को आप चार तरफा से एजुकेशन दोगे, हर चीज उसके दिमाग में, दैट इज द क्वालिटी एजुकेशन. योर प्रोनाउंसिएशन शुड बी गुड, योर वोकेबलरी गुड बी, इवन दे हैव अ गुड माइंड. व्हेन वी टॉक अबाउट द थिंग अबाउट द करंट अफेयर, children will give the answer. So that is the quality education. Technology is also a supporting to the Supporting tool for that teaching. for teaching. Yes, this is not the technology. Okay, when in higher education someone is taking a B in electronic or mechanical, that is the different thing. You are taking a technology. But in schooling, firstly the main part of the teacher to give the quality education to the student, and it's the only and only teacher those who are responsible for the quality education. Ma'am, at present, if we talk about the schools which are running here from past so many years, everywhere you will find they have written English medium, English medium school. But with your experience, you might have seen this, that maximum stuff of ours lacks in communication English. They lack in communicating in English. With respect to that, what do you say? And अगर इंग्लिश मीडियम है तो फिर उन बच्चों का जो कम्युनिकेशन होना चाहिए जो इंग्लिश में, वो प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं है, कहाँ पे कमी रह रही है, और उस कमी को किस हद तक आपके स्कूल में दूर किया जा रहा है? आपने बिल्कुल ये बात ठीक कही कि इंग्लिश मीडियम हर तरफ लिखा जा रहा है, और ऐसा नहीं है, स्कूल की तरफ से प्रयास भी किए जा रहे हैं. देखिए, हर चीज़ को मैं किसी एक को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानूंगी, क्योंकि टीचर्स भी हमारे इसी एटमॉस्फेयर से आ रहे हैं और पेरेंट्स भी हमारे इसी एटमॉस्फेयर से आ रहे हैं. इस चीज़ में तो कोई दो राय नहीं है कि इंग्लिश जो है एक बहुत ज़रूरत है हर तरफ हमें आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे हर तरफ भारत में क्या है, हर तरफ इंग्लिश का है, रिटन में भी चाहिए, हमें बोलने के लिए भी चाहिए. कोशिश अपने आप से की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी ऐसा प्रॉपर एटमॉस्फेयर जो है वो घर में, सोसाइटी में क्रिएट नहीं हो पाया है कि जो बच्चे जो हैं बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपरली इंग्लिश को बोल सकें. टीचर्स तो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जो एक एटमॉस्फेयर है वो उसको अभी पूरी प्रैक्टिस नहीं दे पा रहा है जो कि उनको करे. और मुझे नहीं लगता कि बहुत इतनी ज़रूरत भी है कि बच्चा हरदम अपना इंग्लिश ही बोले. बिल्कुल. स्कूल में बोल लेता है, अच्छा है, अदरवाइज घर जाके तो उसको हिंदी के साथ साथ अपनी रीजनल लैंग्वेज भी आनी चाहिए. वही मैं इसमें आपको टोकना चाहूँगा यहाँ पे. जैसे हमारी अभी न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली जिक्र किया है कि जब आप तीसरे साल में बच्चे को एडमिशन कराएंगे तो द इंस्ट्रक्शन, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, दैट विल बी मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज. ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है ये जो न्यू हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, बनी है. अगर आप इसको प्रॉपरली रीड करोगे तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मज़ा तब होगा अगर हम इसको प्रॉपरली ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. उसमें कोई डाउट नहीं है, और मैं इस चीज़ के लिए पूरा सपोर्ट करती हूँ कि इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है. आप स्कूल में कीजिए, आप अपने ऑफिशियल्स, ये जरूरी नहीं है कि आप घर में भी इंग्लिश करें, आप घर में एक बार रीजनल लैंग्वेज को तो सपोर्ट कीजिए. उन लैंग्वेज को क्यों मार रहे हैं, स्पेशली ना नॉर्थ. आप साउथ में जाओगे वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन हम नॉर्थ में पता नहीं हम लोगों ने क्या बना लिया है कि नहीं, हिंदी इज ऑल्सो एंड इंग्लिश उससे भी ऊपर है. अपनी रीजनल लैंग्वेज को उसको साइड पर छोड़ दो. कोई भी, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द डोगरी, कश्मीरीज. मैं कश्मीरीज में देख रही हूँ, मुट्ठी भर कश्मीरी है, लेकिन अब हमारे बच्चों को कश्मीरी आती नहीं. क्यों नहीं आती? पहाड़ी लैंग्वेज है, बच्चे बोलते नहीं है, शर्म करते हैं, क्यों नहीं? इंग्लिश, आई
फुल सपोर्ट ऑन इंग्लिश। इवन माई स्कूल मैं पूरा प्रेफरेंस देती हूँ, टीचर्स को ये बात करती हूँ, क्योंकि हम लोग तो वही देंगे जो हमारे बच्चों को प्रोफेशनली आगे जाके जिस लैंग्वेज की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर वो घर में रीजनल लैंग्वेज तो मैं उसको पूरा सपोर्ट करती हूँ। और आपका जो क्वेश्चन था कि प्रॉपरली नहीं हो पा रहे हैं, हाँ कुछ हद तक नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अब मुझे ऐसे लगने लगा है कि सोसाइटी में 60-70% बच्चे बहुत अच्छी इंग्लिश फ्रॉम द प्राइमरी से बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि नाउ पेरेंट्स आर ऑल्सो सपोर्टिंग फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज। उनको कहीं लग रहा है कि नहीं, हमें आगे मूव करने के लिए, ग्रो करने के लिए इस इंग्लिश को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, 50-60% बच्चे जो हैं आजकल बहुत अच्छी प्रॉपरली इंग्लिश जो है बोल रहे हैं। हाँ, और टीचर्स के भी पूरे अच्छे एफर्ट्स हैं। मैं हर जगह इस चीज़ में बोलूँगी कि टीचर्स जो आज से 50 ईयर्स पहले थी वही आज भी है। क्योंकि मैं इस लाइन में लास्ट 25 सालों से हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स का जो अंदर का होता है वो हरदम जब स्कूल में घुसता है या वो अपनी क्लास में एंटर करता है, उसका एक ही वो होता है कि मुझे बच्चों को परफेक्ट बनाना है। सो टीचर्स आर डूइंग देयर वर्क वेरी परफेक्टली। तो हम टीचर्स को कहीं नहीं वो कर सकते, टीचर्स अपना करें, बट सम एटमॉस्फेयर इज देयर। टाइम लगेगा, लेकिन हमारी कोशिश और वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। इसी चीज़ को थोड़ा सा और ऐड अप करूं अगर मैं, मैम मेरा क्वेश्चन भी इससे थोड़ा बहुत जुड़ता ही है। जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज है, उसमें कोई अंतर नहीं है, पंजाबी या डोगरी कोई भी लैंग्वेज है। बट जो मेन दो लैंग्वेजेस आज के समय में स्कूल्स में मैक्सिमम प्रेफर की जाती हैं, हिंदी और इंग्लिश। अगर हम इनके बेसिक्स को थोड़ा सा इनके ऊपर अगर गौर करें, जैसे हम बेसिक ग्रामर की बात करें, इंग्लिश के बेसिक व्याकरण जो हमारा हिंदी का है, वाई द मैक्सिमम स्टफ लैक्स दैट, क्यों वो लैक कर रहा है? अगर एक 12वीं क्लास का बच्चा जो है, इवन ही और शी इज़ नॉट एबल टू सॉल्व one simple sentence of primary or pre-primary, and you with the experience of your 25 year, जो आपने 25 साल बताया हमें, आपने भी ये चीज़ देखी होगी कि कई ऐसे बच्चे हैं जो प्राइमरी और मिडल के उन क्वेरीज को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। प्रॉपर उनका जो बेसिक है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। आपने पहले रिप्लाई में कहा कि टीचर्स अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं हम बच्चे को अगर प्री प्राइमरी में अगर बच्चे को वैसा नरिश करें तो वो बच्चा 10th में उन चीज़ों को ऑटोमेटिकली ग्रैस्प कर पाएगा। वी एवरी टाइम यूज टू स्क्रॉल अवर स्टूडेंट्स देयर इन हायर लेवल एंड इन हायर सेकेंडरी लेवल, बट वी नेवर एवर फोकस ऑन देयर बेसिक्स इन प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी, जहां हमने बच्चे को ये बताया ही नहीं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और आगे लाइफ टाइम तक तुम्हारे एजुकेशनल करियर में ये चीज़ तुम्हारे साथ रहेगी। ये मेरा व्यू पॉइंट है। अब आप अपने एक्सपीरियंस से इसमें क्या ऐड करेंगे? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यू आर वेरी मच राइट अबाउट द प्री प्राइमरी। बेसिकली कहीं ना कहीं मैं अगर ये चीज़ बोलूँ तो कंट्रोवर्शियल भी हो जाती है कि बहुत स्कूल्स ओपन हो गए हैं और कहीं ना कहीं जगह पे उन क्वालिटीज़ नहीं देखी जाती। घर के पास स्कूल है, भेज दिया, जहाँ पर शायद मैं उनको नहीं कहती कि टीचर्स की नीयत गलत होती है या उनका, पर कई बारी टीचर्स इतनी एफिशिएंट नहीं होती हैं कि जो ये चीज़ें बच्चों को बता सके। बहुत कंट्रोवर्शियल सा आंसर दे रही हूँ मैं, कल को ये बात गलत भी हो सकती है मेरी, बट मैंने ये नोटिस किया है कि कई बारी बच्चे मेरे पास जब बड़ी क्लासेस में आते हैं तो मैं ये देखती हूँ कि छोटी सी बात भी उनको नहीं आती है। इवन वर्ड्स को सही प्रोनाउंस भी नहीं बच्चे करते हैं। तो हाँ, है गलती, मैं अब हर चीज़ को तो नहीं ले सकती, लेकिन प्री प्राइमरी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की बहुत ज़रूरी है, जो कि अब ये हमारी नई जो पॉलिसी आ रही है, एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसमें ये बहुत जरूरी है। प्री प्राइमरी को इम्पोर्टेंस देने की बहुत ज़रूरत है। और प्री प्राइमरी को जब एक पेरेंट्स जो सेलेक्ट करता है, सबसे पहले आपने देखना है कि जो ये ओनर या उनका प्रिंसिपल जो ये स्कूल खोल के बैठा है, उसका बैकग्राउंड क्या है? वो एजुकेशन लाइन में ही है या वो बंदा एजुकेशन लाइन में नहीं है, उसके पास प्लेस थी, उसके पास सारे सोर्स थे, उसने स्कूल खोल दिया और एक टीचर्स जो है, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी इसके लिए, लेकिन टीचर्स जो है रख ली। आपको ये क्वालिटी देखनी बहुत ज़रूरी है।
फीस पर नहीं जाना चाहिए कि भैया फीस ज़्यादा है कम है। मुझे लगता है कि अगर आपके घर में कोई बहुत अच्छा एक एजुकेटेड बंदा है, उसको भी 2 साल के बच्चे को पकड़ाओ कि भैया मेरे बच्चे के साथ कुछ सेंटेंसेस अच्छी तरीके से बोलो। क्योंकि हम लोगों का क्या होता है कि व्हेन चिल्ड्रन एंटर इन स्कूल, फर्स्टली वी गिव स्ट्रेस ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द चिल्ड्रन। आप ठीक कह रहे हैं। और बाद में ऐसा क्या होता है कि जहाँ बच्चे लैग कर जाते हैं 5th तक, वो बाद में बात को पूछते ही नहीं है। उनको लगता है कि नहीं ये बहुत छोटी सी बात है और इंसल्ट हो जाएगी अगर हम टीचर से या किसी और से पूछते हैं इसको क्लियर करने के लिए। तो वो बच्चा जो है लंबे टाइम तक चलता रहता है और उसकी जो चीज़ बेसिक लैक होता है वो लैक ही रहता है। और बाद में तो ऐसा होता है कि मार्क्स के पीछे दौड़ लग जाती है। पेरेंट्स भी कहते हैं अरे छोड़ो इसको, छोड़ो तुम ये लर्न कर लो, इससे तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। जी जी। एक मार्क्स की दौड़ लग जाती है 8th 9th में, और वो बेसिक्स कहीं ना कहीं पीछे लैग कर जाता है। और ऐसा नहीं है, शायद हम भी स्टूडेंट थे या हम लोग भी अब कितने बच्चों से, कितने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हम टीचर से बैठ के करते हैं, जो चीज़ पीछे रह जाती है ना वो कहीं ना कहीं हरदम जख्म के साथ हमारे साथ रहती है व्हेन यू आर इन एजुकेशन लाइन। हाँ, हमारे टीचर ने हमें ये चीज़ सही तरीके से नहीं समझाई थी। बहुत अच्छा एक इसी से एग्जांपल लेती हूँ, ई की मात्रा। बहुत से बच्चों की इतनी गलतियाँ होती है ई और ऊ की मात्रा में। अगर आपको स्टार्टिंग से ही हिंदी की टीचर बहुत परफेक्ट मिल जाती है, जिंदगी में कभी मात्राओं की गलती नहीं होती है। तो यहाँ ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी भी नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ें, हाँ ये चीज़ें कहीं ना कहीं लैक कर जाती हैं बिकॉज ऑफ द नेगलेंस ऑफ टीचर। टीचर्स की नेगलेंस नहीं होती, शायद टीचर ही कहीं ना कहीं परफेक्ट नहीं होता। क्योंकि हम इसी एटमॉस्फेयर से, हम इसी चीज़ से आया, जो गलती आज हुई है उस टीचर बेचारे के साथ भी हुई होती है। सो ये हो जाती है। और इसीलिए हरदम मैं टीचर्स को बोलती हूँ भैया ये ई और ऊ की मात्रा को क्लियर करो। यहाँ पे आपके स्कूल में तो नहीं हो रही है वो गलतियाँ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हम लोग क्या होता है, जब एजुकेशन लाइन में होते हैं ना, हमें पता होती है कि कहाँ कहाँ पर किस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैं तो अपनी, इवन आप यकीन नहीं करोगे कि कई बारी मेरे पास मेट्स है, वी हैव अ प्री प्राइमरी स्कूल, इन एवरी क्लास वी हैव अ मेट कई बारी कई चीज़ों को गलत बोल देती है। जैसे श को स बोल दिया किसी ने, मैं उसी टाइम टोकती हूँ, मैं कहती हूँ इसको इम्प्रूव करो, क्योंकि बच्चा तुम्हें नोटिस ज़्यादा कर रहा है। मेट जो होती है ना, उसको बच्चा माँ की तरह देखता है, क्योंकि वो खिला रही है, पिला रही है, उसको वॉशरूम अपनी एक्टिविटी करा रही है, तो वो उसको नोटिस कर। मैं कहता तुम अपना पहले। और आप यकीन नहीं करोगे कि मेरे पास एक ऐसी मेट्स हैं जो कि इंग्लिश में प्रोनाउंस करती है, मेक अ लाइन, सिट प्रॉपरली। सो ये एक एटमॉस्फेयर देना पड़ता है और अच्छे एटमॉस्फेयर में हमें ये मिल रहा है। आगे कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि जो हमें गलतियां कहीं दिखी हैं वो हम आगे इम्प्रूव करें। हाँ जी। विद रिस्पेक्ट टू योर आंसर, जो आपने अभी आंसर दिया उससे जुड़ा हुआ ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। टीचर्स का प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन जो बड़ा नोबल प्रोफेशन माना जाता है, लोग बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स भी देते हैं, टीचर्स और नेशन बिल्डर्स, बच्चों को जैसा पढ़ाएंगे आगे आने वाले टाइम पे उन्होंने ही देश को संभालना है। विद रिस्पेक्ट टू द रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऑफ योर स्कूल, व्हाट स्पेशल क्वालिटीज विच यू सी, जो आप देखते हैं, विच यू लुक इन टू दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट जो भी आपके पास आता है, अदर देन हिज क्वालिफिकेशन, नो डाउट ही और शी हैज़ टू फुलफिल दैट क्राइटेरिया जो भी आपने रखा होगा, उसके अलावा ऐसी कौन सी वो क्वालिटीज़ होती हैं विच रियली क्लिक यू, जो आपको क्लिक कर जाती हैं कि येस आई वॉन्ट दिस कैंडिडेट टू बी हियर इन माई इंस्टीट्यूशन। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने अभी अपने उसमें जिक्र किया कि कहीं ना कहीं उन टीचर्स में वो कमी रह जाती है, बिना ट्रेनिंग लिए या बिना उस चीज़ को अपने दिमाग और दिल में रखे हुए वो उन टीचर्स को अपॉइंट कर लेते हैं। तो मेरा क्वेश्चन उसी चीज़ को लेकर है कि आप कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ को देखते हैं? सबसे फर्स्ट क्वालिटी तो टीचर में होती है कि उसको वाकई टीचर बनने का मन है। आप यकीन नहीं करोगे, व्हेन वी आर टेकिंग अ इंटरव्यू, सम गर्ल्स मेरे पास आ जाती हैं और बोलती हैं बस अब मैं फ्री हूँ, मैंने बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अब घर में कोई काम नहीं है तो मुझे टीचर। आई हेट दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस कि आपको घर में कुछ काम नहीं है तो आप टीचर बनना चाहते हो। आपने इतना 3rd क्लास टीचर्स के उसको दिया हुआ है। टीचर्स के लिए पहले आपके मन में होना चाहिए, वाकई में एक डेडिकेशन होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है। एजुकेशन नो डाउट हमारे जम्मू स्टेट में अगर आप देखा जाए बहुत अच्छी एजुकेशन है। नाउ अ डेज स्टूडेंट्स आर डूइंग वेरी गुड,
वो एक क्वालिटी एजुकेशन भी ले रहे हैं, पढ़ने पर जो भी लेकिन कुछ नहीं मिला तो टीचर बन गए। ये वाली जो है ना, हम लोग इस तरीके की जो माइंड सेटअप लेके हमारे पास इंटरव्यू में आता है, उसको अगर कहीं से नोटिस कर लेते हैं तो उसको मैं कभी टीचर नहीं रखती हूँ, चाहे उसके पास कितनी ही ज़्यादा क्वालिफिकेशन क्या ना हो। मेरे पास एक ग्रेजुएशन भी अगर आता है और वो कहता है कि नहीं मैम मेरे को पढ़ाना है, मैं इस चीज़ पे बच्चों को स्ट्रेस देना चाहती हूँ, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। बाकी जब टीचर्स हमारे पास एंटर होती है स्टार्टिंग में फ्रेशर में, बहुत सी चीज़ें क्या होता है कि जब आप पढ़े लिखे लोगों में बैठते हो या आप हमारे उसमें आते हो तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। इवन वी क्रिएट अ वर्कशॉप्स ऑल्सो, टाइम टू टाइम हम बच्चों के लिए हर चीज़ के लिए वर्कशॉप करते रहते हैं कि टीचर्स, क्योंकि हर इंसान सीखता रहता है, परफेक्ट तो कभी भी नहीं। अगर मैं कह रही हूँ 25 साल में है तो मैं भी आज तक परफेक्ट नहीं हूँ। इतना कुछ है सीखने के लिए कि आप पूरी ज़िंदगी सीखते रहते हो। सो मैं फर्स्ट थिंग कहती हूँ कि आपके मन में एक जज्बा होना चाहिए कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, कुछ बनाना है। और वाकई मैंने टीचर्स के चेहरे पर वो खुशी देखती हूँ कि जब वो बच्चा, एक छोटा सा नर्सरी में बच्चा आता है ना, वो फर्स्ट डे हम इंट्रोडक्शन के लिए बोलते हैं, जब वो इंट्रोडक्शन देता है ना, मेरी टीचर खुश होकर मेरे पास आती है, मैम इसने 2 दिन में कितना अच्छी तरीके से दी। वो चीज़ जो है वो टीचर में होनी चाहिए कि मुझे अपने बच्चे को परफेक्ट बनाना है उनके। और हमारे स्कूल में हम लोगों का यही है कि टीचर अगर लास्ट पीरियड में मेरे पास आती है, वी डिस्कस अबाउट द इंडिविजुअल स्टूडेंट। मैडम वो बच्चा ऐसे कर रहा है, नहीं उसमें इम्प्रूवमेंट है, वो पहले ऐसे करता था लेकिन अब कैसे, ये चीज़ जो है होनी चाहिए। ये नहीं कि टाइम पास कर लिया, कुछ नहीं मिली नौकरी तो चलो जी टीचर ही कर लेते हैं। नहीं जी, आप दुकान खोल लीजिए, बैठ लीजिए वहाँ पर, ठीक है। टीचर प्रोफेशन को इस तरीके से मत लीजिए, अदरवाइज कि कुछ नहीं मिला तो चलिए जी टीचर बन जाते हैं, नो। और आप भी सक्सेस नहीं होंगे अगर किसी प्रोफेशन को आप ईमानदारी से नहीं करोगे, तो आप भी उसमें सक्सेस नहीं होगे। एट लास्ट आपको भी वो छोड़ना पड़ेगा। और आप बच्चों को कुछ नहीं दे सकते, बच्चों को कुछ भी नहीं दे सकते, खुद को भी कुछ नहीं दे सकते। आप दूसरों को भी अच्छा सिखाइए और बच्चों को भी, तो खुद भी आप अच्छा सीख पाएंगे। दैट्स द मेन थिंग। कोई आखिरी मैसेज आप अपनी तरफ से बच्चों को या टीचर्स को देना चाहते हो, जो टीचर्स आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और जो बच्चे आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहते हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं टीचर्स के लिए यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो उनको बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को दो। बच्चों के पिलर्स टीचर्स ही हैं, ये तो मान के चलिए। इस चीज़ को आप अदरवाइज कभी नहीं ले सकते कि दिस इज़ द नोबल प्रोफेशन, और वो है तो है। अगर गुरु शिक्षा जैसे थी वैसे ही आज भी है। गुरु के ऊपर बहुत बड़ा, कंधों पर बहुत बड़ा भार है सोसाइटी को एक एजुकेटेड बनाने का। उस चीज़ को लेके चलिए कि वाकई आपके ऊपर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो टीचर शुड बी परफेक्ट, टीचर शुड बी एनर्जेटिक, टीचर शुड बी इन अ गुड IQ लेवल ऑल्सो एंड गुड थिंकिंग ऑल्सो, एवरीथिंग इन टीचर्स। पहले तो ये चाहिए, एजुकेशन तो बाद में होती है। और सेकेंडली मैं मैसेज कोरोना के लिए, जो ये पैंडेमिक जो इतना है और इतना है, उसके लिए दूंगी कि बुरा वक्त चला, लेकिन बुरा वक्त उनके लिए चला जो इस चीज़ में आ गए। अगर हम लोगों ने इस बुरे वक्त को सरवाइव कर लिया तो हमारे लिए ये बुरा वक्त नहीं था। हम नहीं मानते कि अगर ठीक है हम लॉकडाउन में घर में ही बैठे, हमने बहुत अच्छे से एफर्ट्स किए, सब कुछ बच्चों को अपनी तरफ से देने के लिए किया, बच्चों ने भी कुछ अचीव करने की कोशिश की। सो अगर इस बुरे वक्त में हम उभर कर ऊपर आ गए हैं तो ये वक्त बुरा नहीं है। अगर तैर के हम किनारे पर पहुंच गए तो दैट्स मीन वी आर द विनर्स। सो हम इसको चीज़ को बुरा वक्त नहीं कहेंगे। हम लोगों ने अपने आप ध्यान लिया, हमारी सेहत ठीक रही, हमने बच्चों को अच्छा किया, अब अपना वर्क कर रहे हैं। सो पता नहीं अभी एक टाइम कितना चलेगा, लेकिन हर इंसान को ये सोच के चलना चाहिए कि इस बुरे वक्त से सरवाइव कर जाओ। जो जीता वही सिकंदर वाली बात है। इफ एंड इज गुड एवरीथिंग इज गुड। सो बुरा वक्त मत कहो, वक्त तो हम सरवाइव कर गए तो अच्छा ही है, अंत भला तो सब अच्छा, भला सब अच्छा। सो व्यूअर्स, ये थे सेंशिया इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू। सो व्यूअर्स, message is very clear from principal desk that this teaching profession, no doubt हर कोई बंदा आज के टाइम पे टीचिंग लाइन में आना चाहता है, लेकिन एक बड़ी खूबसूरत चीज़ मैम ने कही कि मैक्सिमम पीपल जंप इनटू दिस प्रोफेशन जस्ट बाय चांस, नॉट बाय चॉइस। सो वो एक माइंडसेट हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा कि और कुछ नहीं है तो चलो टीचर बन जाते हैं।
बड़े सारे लोग जो हैं वो टीचिंग प्रोफेशन में इसलिए आ जाते हैं कि उनको लगता है कि चलो कुछ और नहीं है करने के लिए तो चलो टीचर बन जाते हैं। तो इसलिए बड़ी एक खूबसूरत चीज़ मैडम ने कही है। और दूसरा, बच्चों और पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है कि इस कोरोना टाइम पे जो 2020 अभी पीरियड चला गया, इसको आपने ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह लेना है। मैनी अमंग अस हैव लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक इवन इफ मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने इतनी सारी टेक्नोलॉजी को लेकर चीज़ें सीख ली, पेरेंट्स ने सीख ली, बच्चों ने सीख ली, इवन टीचर्स ने सीख ली। जो हमारे कुछ 40-50 की एज के जो टीचर्स थे, जो कि इतने टेक सेवी नहीं थे, उन्होंने वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो गए, उन्होंने कई सारी चीज़ें सीख ली। आज वो गूगल पे, जूम पे, हर एक पे आज वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो कहीं ना कुछ अच्छा ही हुआ है। तो हमेशा हर चीज़ को नेगेटिविटी से ना लें, पॉजिटिविटी से लें। और इसी सब के साथ आज का हम अपना टीचर्स टॉक कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। वन थिंग मोर अनूप, इसमें मैं ये जरूर एंटर करना चाहूँगी कि इसमें जो बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स हुई है वो हमारी ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी हुई है, जो बच्चों ने बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम अपना स्पेंड किया है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, और एक फैमिली एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हुआ है जो काफ़ी सालों से लैक कर रहा था। तो आप कभी भी किसी घर में जाएंगे तो वहाँ ग्रैंड पेरेंट्स बड़े खुश हैं कि एटलीस्ट बच्चों ने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया है, एक अच्छा टाइम स्पेंड किया। सो हर चीज़ के अच्छे पहलू भी होते हैं, बुरे पहलू भी होते हैं। जो सर्वाइव कर गया वो बहुत अच्छा है। सो वक्त अच्छा ही है, आप अच्छी तरीके से करिए तो अच्छा है। मैं फिर से कहूँगी, अंत भला तो सब भला। So viewers, with the same way, we will let you introduce with the new personality. Till then, do take care of yourself. Thank you very much.